Hey wonderful learners! Your social science teacher Aprajita is back with a new chapter of class 7 history, that is chapter number 3, and we are going to read about the Delhi Sultanate period. क्या पढ़ेंगे आज हम? Delhi Sultanate period के बारे में. So let's start it. In this chapter हम क्या पढ़ने वाले हैं आज इस चैप्टर में? Slave Dynasty 1206 to 1290 AD. तो पहले हम पढ़ेंगे Slave Dynasty के बारे में. Then Khalji Dynasty, we'll read about the different dynasties. Khalji Dynasty 1290 to 1320 AD. Then Tughlaq Dynasty 1320 to 1414 AD. Taimur invasion, Taimur का invasion कब हुआ था? 1398 CE. Then Sayyid Dynasty 1414 to 1451 AD. Lodi Dynasty 1451 to 1526 AD. तो हम आज इन सब डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे और तैमूर के इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे. So here we start. The period from 1206 AD to 1526 AD, known as the Delhi Sultanate. ये जो पीरियड है 1206 AD से 1526 AD का, इसे कहा गया दिल्ली सल्तनत. Delhi was an important trade town during the reign of पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे जो दिल्ली था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड टाउन बन गया था. But after the defeat of Prithviraj Chauhan in the Battle of Tarain in 1192, Delhi came under the Turkish rule. और जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई बैटल ऑफ ट्रेन में, कब? 1192 में. उसके बाद ये जो दिल्ली है ये किसके अंदर आ गया? टर्किश रूल के अंदर आ गया. दस दिल्ली सल्तनत बिगैन. अब यहाँ से शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत. These 5 dynasties of the Sultanate dynasty are as follows. अब ये जो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टीज थी, 5 डायनेस्टीज, वो कौन कौन सी थी? लेट्स सी देम. Look, dynasties and important ruler. 5 main dynasties of Delhi Sultanate and उसके कौन कौन रूलर्स थे वो देखेंगे हम. Fine children? So the first one is the slave dynasty 1206 to 1290, and the main rulers were Qutbuddin Aibak, Shamsuddin Iltutmish, Razia Sultan, Ghiyasuddin Balban, and these are the time periods कब से कब तक उन्होंने रूल किया. The second one is the Khalji dynasty. Jalaluddin Khalji 1290 to 1296, then Alauddin Khalji 1296 to 1360. Next comes the Tughlaq dynasty 1320 to 1414. The main rulers were Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq, and these are the time period. Then comes the Sayyid dynasty. Khizr Khan Sayyid, Mubarak Shah Sayyid, Muhammad Shah Sayyid, Alauddin Alam Shah Sayyid, and these are the time periods when they ruled. Fifth one is the Lodi dynasty. और रूलर्स कौन थे? बहलुल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी. Fine children, these were the 5 main dynasties. Now fact to know, the word sultanate means the form of government or kingdom under the sultans. सल्तनत का मतलब क्या होता है? सल्तनत का मतलब है एक गवर्नमेंट का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या किंगडम, किसी किंगडम का कोई फॉर्म अंडर किसके अंडर था? वो सुल्तान्स के अंडर. लेट्स स्टार्ट विद द स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1290 AD. द स्लेव डायनेस्टी इज ऑल्सो कॉल्ड द ममलुक, मीन्स अ स्लेव और ओन्ड. स्लेव डायनेस्टी को ममलुक भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्लेव, गुलाम या ओन्ड. किसी ने अगर उसको ओन किया हुआ है, उसके लिए जो काम करता है, दैट इज नोन एज ममलुक. Iltutmish and Balban were the slaves of Qutbuddin Aibak,
who himself was a slave of Muhammad Ghori. अभी जो इल्तुतमिश और बलबन थे ये किसके स्लेव्स थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो खुद ही एक स्लेव था, किसका? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक, the slave dynasty was founded by Qutbuddin Aibak. He was made the governor of Delhi and Ajmer by Muhammad Ghori. अब किसका स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने गवर्नर ऑफ दिल्ली और अजमेर किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आफ्टर हिज डेथ इन 1206 he declared his independence and thus the Delhi Sultanate period began in 1206. अब कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे थे? कुतुबुद्दीन ऐबक was a liberal sultan, liberals थे बहुत, who gave large donations and called लक बख्श, वो बहुत बड़े अमाउंट में डोनेशंस देते थे। He had interest in architecture. He died in 1210. 1206 में तो मोहम्मद गौरी की डेथ हुई और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। दिल्ली सल्तनत यहीं से स्टार्ट हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ, ही डाइड ऑन 1210। शमशुद्दीन इल्तुतमिश। अब शमशुद्दीन इल्तुतमिश कौन थे? इल्तुतमिश वॉज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ जो थे वो थे इल्तुतमिश। ही असेंडेड द थ्रोन आफ्टर डिफीटिंग ऐबक्स सन। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटों को डिफीट करने के बाद वो थ्रोन पे बैठा। ही इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द सल्तनत, और उसको सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है। ही ऑक्यूपाइड बंगाल, सिंध and secured his boundaries against the Mongols. उसने बंगाल को ऑक्यूपाई किया, सिंध को ऑक्यूपाई किया और मंगोल्स से सब बचाया एंड सिक्योर्ड हिज बाउंड्री, अपनी बाउंड्रीज को मंगोल्स से बचाया। He fought with the Mongols who were then led by the famous चंगेज खान। और मंगोल्स का लीडर कौन था? चंगेज खान। और उससे किसने लड़ाई की? इल्तुतमिश ने। ड्यूरिंग हिज रूल ही सिक्योर्ड विक्ट्रीज अगेंस्ट रणथंबोर, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, बिहार। यहाँ उसको विक्ट्रीज मिली। ही ऑर्गेनाइज्ड द चालीसा, द 40 नोबल्स। उसने क्या ऑर्गेनाइज किया? चालीसा से कहा जाता है 40 नोबल्स। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन्स टाका एंड कॉपर कॉइन्स जितल। 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए इल्तुतमिश ने, टाका एंड जीतल। He had many sons, but he did not consider any of them worthy of the throne. बहुत सारे बेटे थे इल्तुतमिश के, लेकिन इल्तुतमिश को कोई भी बेटा काबिल नहीं लगता था जो कि थ्रोन पे बैठे। So he nominated his daughter Razia to succeed him. इसलिए उसने अपनी बेटी रजिया को नॉमिनेट किया कि वो थ्रोन पे बैठे। He died in 1236. However, the nobles did not accept Razia as the next sultan. लेकिन जो नोबल्स थे उन्होंने रजिया को एज अ सुल्तान एक्सेप्ट नहीं किया। So they made रुकुद्दीन फिरोज शाह एज द नेक्स्ट सुल्तान। और उन्होंने सबने मिलके, नोबल्स ने रुकुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। बट ही कुड नॉट लास्ट मोर देन अ फ्यू मंथ्स। लेकिन रुकुद्दीन फिरोज शाह कुछ महीनों तक ही चला पाया, उसके बाद he couldn't last. Thus रजिया came to the throne. इसलिए फिर से रजिया को वापस थ्रोन पे बिठाया गया। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान was the first woman ruler of India. पहली वुमेन रूलर जो इंडिया की थी वो थी रजिया सुल्तान। She ruled for a short time as the nobles could not accept to receive orders from a woman. एक वुमेन से ऑर्डर लेना नोबल्स नहीं ले पा रहे थे उनसे ऑर्डर्स। इसलिए रजिया सुल्तान का जो रूल था, जो टाइम पीरियड था, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रूल किया उसने। द नोबल्स गॉट हर असैसिनेटेड इन 1240 में रजिया सुल्तान को मरवा दिया गया। किसने? नोबल्स ने। आफ्टर हर डेथ सेवरल स्लेव रूलर्स केम टू द थ्रोन बट दे कुड नॉट मेक एन इम्पैक्ट। और रजिया सुल्तान के डेथ के बाद बहुत सारे
जो गुलाम रूलर्स थे वो थ्रोन पे बैठे, लेकिन वो नहीं चला पाए, वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। गयासुद्दीन बलबन Balban came to the throne in 1266 AD. He was a strong ruler. He strengthened his army and secured his borders from the Mongols. Balban एक बहुत strong ruler था. उसने अपनी army को strong किया और अपने borders को मंगोल से secure किया. He also fought with the local Rajput rulers. और जो local Rajput rulers थे उनसे भी उसने wars किए. In order to curb the powers of the nobles, he introduced the Persian custom of sajda, the practice of bowing down and saluting. अब इन ये जो नोबल्स जो बहुत ज़्यादा पावर में आ गए थे, उनके पावर्स को दबाने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया? पर्शियन कस्टम होता है एक सजदा करने का, वो इंट्रोड्यूस किया। सजदा में क्या होता है कि बॉव डाउन करना होता है किंग के सामने और सल्यूट करना होता है। एंड पाइबॉस, सजदा और पाइबॉस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द नोबल्स, और नोबल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस किया। However, the nobles did not accept these measures easily. लेकिन नोबल्स के लिए ये ईजी नहीं था ये सब कुछ एक्सेप्ट करना। Balban died in 1287 AD. The rulers who succeeded him were not able and were overthrown by the Khalji nobles. Thus, the Khalji dynasty ascended the throne of Delhi. अब बलबन की डेथ हुई 1287 AD में, और जो रूलर्स थे जिन्होंने सक्सीड किया बलबन को, बलबन के बाद जो आए, दे वर नॉट एबल टू रूल, और खलजी नोबल्स ने उन्हें ओवरथ्रो कर दिया, थ्रोन से हटा दिया। उसके बाद खलजी डायनेस्टी केम टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के थ्रोन पे कौन सी डायनेस्टी बैठी? खलजी डायनेस्टी। सो नाउ लेट्स रीड अबाउट द तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1414 AD। अब देखते हैं तुगलक डायनेस्टी में हु वाज द मेन रूलर हियर। द तुगलक डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। किसने फाइंड किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी को फाइंड किया था। टू इम्पॉर्टेंट सुल्तान्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर, अब दो इम्पॉर्टेंट सुल्तान कौन थे इस डायनेस्टी के? मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। फाउंडर तो गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन जो मेन रूलर्स थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ड्यूरिंग द ब्रीफ पीरियड ही रूल्ड, he put down the rebellions and strengthened the sultanate। छोटा सा शॉर्ट पीरियड था उसके रूल का, लेकिन उस टाइम तक उसने रेबेलियंस का जो रेबेलियंस थे उनको उसने पुट डाउन कर दिया था एंड स्ट्रेंथन द सल्तनत, सल्तनत को और मजबूत बनाया। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, और गयासुद्दीन तुगलक को उसके बेटे ने सक्सीड किया, उसका बेटा थ्रोन पे आया उसके बाद। Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq had a lot of new ideas ahead of his times. मोहम्मद बिन तुगलक के पास बहुत सारे नए नए आइडियाज़ थे, अपने टाइम से भी आगे तक के। However, he could not execute his ideas properly and failed miserably. लेकिन आइडियाज़ होते हुए भी वो उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और फेल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक wanted to expand his empire on all sides, for which he needed a larger army, which required larger revenue। अब मोहम्मद बिन तुगलक को चाहता था कि उसका एम्पायर जो है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी, और बड़ी आर्मी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था। Therefore, he increased the tax on cultivable land in the Doab। उसने क्या किया? रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए टैक्सेस को बढ़ा दिया। However, this step was ill-timed as this area was facing famine at this time। जो दोआब एरिया में जो कल्टिवेबल लैंड पे उसने टैक्सेस इंक्रीज किए, वो गलत टाइम पे लगाया था टैक्स, क्योंकि उस टाइम पे वो एरिया जो था वो famine झेल रहा था। As a result, a lot of people abandoned their land and revolted। और वहाँ लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। Consequently, Muhammad had to withdraw his orders।
और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मोहम्मद को जो ऑर्डर्स उसने पास किए थे टैक्सेस रेज करने के लिए वो वापस लेना पड़ा। अनदर सच स्टेप वाज द शिफ्टिंग ऑफ हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। अब दूसरी एक और चीज़ जिसमें वो फेल हुआ वो था दिल्ली से उसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था देवगिरी। ही ऑर्डर्ड ऑल पीपल ऑफ दिल्ली टू शिफ्ट टू द न्यू कैपिटल, और उसने जो लोग वहाँ दिल्ली के थे उनको सबको ऑर्डर दिया कि वो वहाँ से देवगिरी शिफ्ट हो जाएं। When they reached there, Muhammad bin Tughlaq said that it was difficult to keep a watch over the northern frontiers from there. So he ordered to move the capital back to Delhi. अब जब सब वहाँ शिफ्ट हो गए तो सब लोग वहाँ शिफ्ट हो गए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कहा कि यहाँ से नॉर्दर्न फ्रंटियर्स पे वॉच रखना बहुत मुश्किल काम है, तो वापस उसने ऑर्डर किया कि वापस से कैपिटल दिल्ली बना दिया जाए, दिल्ली शिफ्ट कर जाए। Due to this, the Brahmani kingdom rose to power in Deccan and the Vijayanagar kingdom rose in South India. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये शिफ्टिंग का बार बार जो ब्राह्मणी किंगडम था वो डेक्कन में पावर में आ गया और विजयनगर किंगडम वो कहाँ सर उठा के खड़ा हुआ, साउथ इंडिया में। Yet another new idea of Muhammad bin Tughlaq was the issue of token currency in 1329। एक और नया आइडिया जो था मोहम्मद बिन तुगलक का वो था टोकन करेंसी इशू करने का। He got coins of brass and copper minted which had the same value as the corresponding silver coins। उसने ब्रास और कॉपर के जो कॉइन्स थे वो मिंट करवाए और उनकी वैल्यूज वही थी जो कि सिल्वर कॉइन्स की थी। The pattern of the coins was so simple that the local craftsmen easily counterfeited them। अब जो पैटर्न था उन कॉइन्स का वो इतना सिंपल था कि जो लोकल क्राफ्ट्समैन थे उन्होंने इजीली उसको डुप्लीकेट कर लिया। नाउ द पीपल स्टार्टेड टू पे देयर टैक्सेस इन देयर काउंटरफिटेड करेंसी। एज अ रिजल्ट द ट्रेजरी वॉज एम्प्टीड। ट्रेजरी खाली हो गया। Muhammad bin Tughlaq, in order to secure his northern frontiers, sent his army to occupy the Kangra region, present-day Himachal Pradesh. He sent the army further to Tibet, where the hostile hills caused a lot of casualties. Muhammad bin Tughlaq also had an idea to expand his empire up to Central Asia. एक और आइडिया क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का कि अपने एम्पायर को सेंट्रल एशिया तक एक्सपैंड करना। So he recruited a large number of soldiers and equipped them with weapons and supplies. इसके लिए उसने बहुत सारे सोल्जर्स रिक्रूट किए और उनको वेपन्स और सप्लाईज से इक्विप करवा दिया। However, this expedition was given up because this could lead to misery to the soldiers. ये expedition भी नहीं कामयाब हुआ। These new soldiers were disbanded. All these new ideas proved impractical. Ideas तो बहुत थे मोहम्मद बिन तुगलक के पास, लेकिन सब impractical. And Muhammad bin Tughlaq became very unpopular. लोगों में unpopular हो गया। This Bahmani and the Vijayanagar kingdoms the Brahmani and the Vijayanagar kingdoms came up in the Deccan and South India respectively. Deccan में Bahmani kingdom और साउथ इंडिया में विजयनगर किंगडम आ गए। No other Delhi Sultan had faced so many revolts as he. जितने रिवोल्ट्स मोहम्मद बिन तुगलक ने फेस किए उतने रिवोल्ट्स किसी भी दिल्ली सुल्तान ने नहीं फेस किया था। He died in 1351 when he was going to Sindh to suppress a revolt. जब वो 1351 में सिंध जा रहा था एक रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए उसकी डेथ हो गई। फाइन। Now, Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq, cousin of Muhammad bin Tughlaq. अब मोहम्मद बिन तुगलक का cousin था फिरोज शाह तुगलक. Ascended to the throne in 1351. 1351 में वो throne पे आया फिरोज शाह तुगलक. To win the confidence of the ulema and the nobles, he started to give them favors. अब उलेमास और nobles का विश्वास जीतने के लिए उसने उनको फेवर देना शुरू किया। During the Sultanate period, the sultans gave iqtas. Iqtas का मतलब होता है land to the nobles for the realization of taxes and maintenance of army. These iqtas could be taken them
back whenever he desired so. और जब भी उसका मन होता था वो इक्तास को वापस ले सकता था. On the death of an iqtadar, the iqta went back to the sultan. और अगर किसी इक्तादार की डेथ हो जाती थी तो वो जो इक्ता था वो वापस सुल्तान के पास चला जाता था. However, फिरोज शाह तुगलक made इक्तास hereditary. उन्हें इक्तास को हेरिडिटरी बना दिया. The administration under the Tughlaqs was divided into 4 major departments. और जो तुगलक्स के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन था उसको 4 मेजर डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया. दीवानी विज़ारत फाइनेंस, दीवानी रिसालत रिलीजियस मैटर्स, दीवानी अर्ज मिलिट्री अफेयर्स एंड दीवानी अंशा कोर्ट कॉरेस्पॉन्डेंस. Different nobles were the heads of different departments. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स थे वो अलग अलग नोबल्स थे. The wazir looked after revenue and general affairs of the sultanate. सल्तनत के रेवेन्यू और जनरल अफेयर्स को का देखभाल कौन करता था? वजीर. He appointed high officials in different departments. The qazi was the chief judge. और चीफ जज कौन था? काजी हुआ करता था. Who decided the criminal and religious matters. An appeal could be made to the sultan. The Bakshi was the paymaster for the army who recruited, trained and equipped soldiers, though the supreme command of the army lay with the sultan. जो बख्शी था वो पे मास्टर था किसके लिए? आर्मी जो रिक्रूट करते थे ट्रेंड और इक्विप्ड सोल्जर्स को, लेकिन आर्मी का जो सुप्रीम कमांड था वो सुल्तान के पास होता था. To please the ulema, he introduced the Quranic laws and gave grants to them. अब किसको? उलेमास को प्लीज करने के लिए उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? कुरानिक लॉज और ग्रांट्स देने शुरू किए उनको. As a result, the nobles and the ulema became very powerful. और इसका फ़ायदा उठाते हुए जो नोबेल्स और उलेमास थे वो बहुत पावरफुल हो गए. These steps resulted in revolts in Bihar and Bengal. और इस तरह से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया कहाँ? बिहार और बंगाल में. मेवाड़ एंड मारवाड़ too succeeded from his sultan. He built many canals, tanks, wells, hospitals and rest houses. किसने बनाया? We are reading about Firoz Shah Tughlaq. So Firoz Shah Tughlaq built many canals, tanks, wells, hospitals and rest houses. He founded many new towns. बहुत सारे नए towns भी found किए इसने. He set up educational institutions. He also commissioned the translation of Sanskrit works to Persian and Arabic. जितना भी संस्कृत में लिखा हुआ वर्क था उसको पर्शियन और अरबिक में ट्रांसलेट करवाया. After his death in 1388, a war of succession broke out and many governors declared their independence and the Delhi Sultanate reduced to Delhi and its surrounding areas. अब इसकी डेथ के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ के बाद एक वॉर ऑफ सक्सेशन चला कि कौन आएगा थ्रोन पे. जितने गवर्नर्स थे उन्होंने अपने आप को खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और इस तरह से दिल्ली सल्तनत जो था वो दिल्ली तक ही सीमित रह गया. दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक सीमित रह गया. दिस डायनेस्टी केम टू एन एंड in 1414 due to the weak successors who were finally defeated by Khizr Khan, who became the Sultan of Delhi. और ये जो डायनेस्टी थी सुल्तान डायनेस्टी, ये इसका एंड हुआ 1414 में, क्योंकि इसके जितने भी सक्सेसर्स थे इसके बाद सब वीक थे, कोई इसे नहीं चला पाया. और फाइनली ये डिफीट किसने किया इनको? खिज़र खान ने, जो कि उसके बाद सुल्तान ऑफ दिल्ली बना. एंड दस द दिल्ली सल्तनत पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ सैयद डायनेस्टी. और इस तरह से जो दिल्ली सल्तनत था वो किसके पास चला गया? सैयद डायनेस्टी के पास. Now, fact to know, Ziauddin Barani was a chronicler who wrote the Tarikh-e Firoz Shahi. He was critically remarked about the
rule of Muhammad bin Tughlaq that he lacked political judgment and was incapable to rule. मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसमें मेंशन किया गया है, क्रिटिकली रिमार्क दिया गया है उसमें कि कैसे वो पॉलिटिकल जजमेंट में लैक करता था और इनकेपेबल रूलर था. कंपैरिजन बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, इन दोनों में कंपैरिजन पढ़ते हैं. A comparison between Muhammad bin Tughlaq and Alauddin Khilji will not be outplaced here. Delhi was attacked twice during the reign of Alauddin Khilji, so he raised a new garrison at Siri for his large standing army. On the other hand, Delhi was attacked by the Mongols in the early Tughlaq years. So, Muhammad bin Tughlaq ordered the shifting of capital to Daulatabad, Devgiri in the south. अब देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी था उस टाइम पे जब दिल्ली 2 बार दिल्ली पे अटैक किया गया तो उसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी के लिए और ज़्यादा न्यू गैरिसन्स रेज किए. लेकिन ऑन द अदर हैंड जब दिल्ली पर अटैक मंगोल्स ने किया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसने अपना कैपिटल ही शिफ्ट कर लिया. He also ordered all citizens to vacate the city. उसने सारे citizens को यह ऑर्डर दिया कि उस सिटी को खाली कर दे. Both of them collected produce from the Doab region as tax to feed the army, which was fixed at 1/2 of the total produce. दोनों ही दोआब रीजन से क्या करते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे. जो प्रोड्यूस होता था उसका 1/2 जो है टोटल प्रोड्यूस का 1/2 लेते थे. However, Muhammad bin Tughlaq also levied additional taxes which unfortunately coincided with the famine in the area and resulted in resentment of the people. लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ एडिशनल टैक्सेस भी ऐड किए और अनफॉर्चुनेटली ऐसी जगह पे वो टैक्सेस बढ़ाए जहाँ पे उस टाइम वो फेमिन का सामना कर रहे थे और इससे क्या हुआ, लोगों का रिवोल्ट स्टार्ट हो गया. Alauddin Khilji paid his soldiers in cash and he regulated the prices of all essential commodities in the market. Alauddin Khilji अपने soldiers को कैश में पे करते थे. On the other hand, Muhammad bin Tughlaq to pay his soldiers issued cheap currency. और मोहम्मद बिन तुगलक अपने सोल्जर्स को पे करने के लिए चीप करेंसी का इस्तेमाल करते थे. But it was counterfeited easily. It resulted in a lot of loss to the treasury. और वो इतने सिंपल कॉइन्स थे कि उसका डुप्लीकेट कॉइन्स भी बनाने लगे और ट्रेजरी धीरे धीरे खाली हो गई. अलाउद्दीन was a good administrator and he was praised for his measures. अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था और उसका लोग उसकी सराहना भी करते थे. On the other hand, the ideas of Muhammad bin Tughlaq failed miserably. और जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हुए भी उसका कोई आइडिया नहीं चला, सब फेल हो गए. तैमूर इन्वेशन. अब तैमूर का इन्वेशन कब हुआ था? 1398 CE. तैमूर द रूलर ऑफ समरकंद इन सेंट्रल एशिया. कहाँ का रूलर था? समरकंद का, जो कि सेंट्रल एशिया में. इन्वेडेड इंडिया इन 1398 CE. उसने इंडिया पे इनको इन्वेजन कब था तैमूर का? 1398 CE. His army mercilessly plundered Delhi and carried away enormous wealth and a number of Indian artisans. अब उसकी जो आर्मी थी तैमूर की, उसने पूरा दिल्ली तहस नहस कर दिया और वहाँ से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा वेल्थ लेके गए और कुछ आर्टिजन, इंडियन आर्टिजन्स को भी ले गए साथ. Before leaving Delhi, he appointed Khizr Khan as his viceroy. He established the Sayyid dynasty. और तैमूर ने दिल्ली छोड़ने से पहले किसको अपॉइंट किया? वहाँ खिजर खान को एज अ वाइसरॉय अपॉइंट कर दिया, जिसने कि सैयद डायनेस्टी स्टैब्लिश की. नाउ लेट्स रीड अबाउट द सैयद डायनेस्टी. 1414 to 1451 AD. All the Sayyid sultans were weak. जितने भी सैयद सुल्तान थे वो सब वीक थे, कमज़ोर थे, and could not administer well. They had to face many problems which they found incapable to tackle. This dynasty ruled for a brief period of 27 years. इस dynasty ने 27 years के लिए rule किया and came to an end in 1451 when the Lodhis took over the sultanate. और ये dynasty जो है सैयद dynasty कब end हुई? जब 1451 ने लोधीज ने टेक ओवर कर लिया.
The sultans of the Sayyid dynasty were, अब सैयद डायनेस्टी के सुल्तान्स कौन कौन थे? खिज़र खान सैयद, मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद and Alauddin Alam Shah Sayyid. Next came the Lodi dynasty, 1451 to 1526 AD. The four earlier dynasties were Turks, while the Lodis were Afghan. अब जो चार पहले की डायनेस्टीज थी वो तुर्क्स थे और जो लोदीज थे वो अफगान्स थे. बहलोल लोदी. नाउ विल रीड अबाउट द लोदी डायनेस्टी रूलर्स. बहलोल लोदी. बहलोल लोदी captured the throne of Delhi in 1451 and thus the Lodi dynasty came to power. दिल्ली की थ्रोन पे, दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठा? बहलोल लोदी. He expanded his area of influence from पंजाब टू बिहार. पंजाब से लेकर बिहार तक उसने अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस फैलाया. ऑल्सो ही चेंज द तुर्क नोबल्स विद द लॉयल अफगान नोबल्स. और जितने भी तुर्क नोबल्स थे उनको चेंज करके उसने वहाँ पे किसको अपॉइंट किया? लॉयल अफगान नोबल्स को. नेक्स्ट केम सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी द सन ऑफ बहलोल लोदी. कौन था सिकंदर लोदी? बहलोल लोदी का बेटा. केम टू पावर इन 1489. ही एक्सपैंडेड हिज एम्पायर बाय कॉन्करिंग जौनपुर, बिहार एंड द गंगा वैली. अब उसने अपना एम्पायर कहाँ फैलाया? जौनपुर, बिहार और गंगा वैली. ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद बंगाल. बंगाल से एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की उसने. ही वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया. ही ट्राइड टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़. और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो लोगों को रोज़मर्रा के चीज़ें थी उसका प्राइस फिक्स करने की कोशिश की. ही गॉट कैनाल्स एंड वेल्स डग फॉर इरीगेशन. ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल देयर. सिकंदर लोदी ने सिटी ऑफ आगरा को ढूंढा, सिटी ऑफ आगरा फाइंड किया एंड अपना कैपिटल वहीं शिफ्ट कर लिया. ही वॉज सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोदी इन 1517. और 1517 में सिकंदर लोदी को किसने सक्सीड किया? इब्राहिम लोदी ने. नाउ लेट्स रीड अबाउट इब्राहिम लोदी. इब्राहिम लोदी वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सुल्तान. इब्राहिम लोदी स्ट्रॉन्ग सुल्तान नहीं थे. द अफगान नोबल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम बट ही डिफीटेड देम. अब अफगान नोबल्स ने इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया लेकिन इब्राहिम लोदी ने उन्हें डिफीट कर दिया. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी सच रिवोल्ट्स इन द फ्यूचर ही रिप्लेस्ड द सीनियर नोबल्स विद द यंग पीपल. और आगे भविष्य में कभी भी ऐसे रिवोल्ट्स ना हो उसके लिए उसने क्या किया? जो सीनियर नोबल्स थे उनकी जगह उसने जो यंग नोबल्स थे उनको अपॉइंट किया, यंग लोगों को. दिस रिजल्टेड इन रिजेंटमेंट. One of these nobles, the Daulat Khan Lodi, invited Babur to invade India. और इसमें से एक जो नोबल था दौलत खान लोदी, उसने बाबर को इनवाइट किया इंडिया आने के लिए, इंडिया पे इन्वेड करने के लिए. दौलत खान लोदी वॉज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी. और दौलत खान लोदी कौन थे? नोबेल्स में ही थे दौलत खान लोदी और वो इब्राहिम लोदी के अंकल थे. बाबर fought with Ibrahim Lodi at Panipat in 1526 and defeated him. बाबर को इनवाइट किया था दौलत खान लोदी ने, तो बाबर ने बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को डिफीट कर दिया. With this, the Delhi Sultanate period came to an end and the Mughal dynasty was founded in India. और इस तरह से जो दिल्ली सल्तनत पीरियड था वो एंड हो गया और मुगल डायनेस्टी आई इंडिया में. This dynasty ruled for 300 years. Now, this was a very long time. मुगल डायनेस्टी ने इंडिया पे 300 years रूल किया. इंडिया में 300 years रूल किया. This is tomb of Sikandar Lodi. So children, we read about all the dynasties here and some important facts to read. क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? Delhi became an important city during the rule of Prithviraj Chauhan, after whom 5 dynasties ruled it for over 3 years.
अब दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन गई थी किस टाइम पे? पृथ्वीराज चौहान के रूल के टाइम पे। और उसके बाद 5 डायनेस्टी ने रूल किया, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक एंड हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश, son-in-law, LAW, expanded the empire. Razia became the first woman ruler of the Muslim world in this dynasty. Balban was a strong ruler of the slave dynasty, after whom the reign was taken over by the Khalji rulers. Now, Alauddin Khalji expanded his territories further and administered them well. The Tughlaq dynasty came to power in 1320. Though its rulers were strong, yet they had impractical ideas due to which they faced revolts. The Sayyid dynasty ruled for a brief period of 27 years, after which the Lodi dynasty came to power in 1451. 1451 में Lodi dynasty power में आई, but it was rooted and put to an end in 1526 by Babur. लेकिन ये जो लोधी डायनेस्टी थी इसका एंड किसने किया? बाबर ने। कब? 1526। Okay children, now let's do the exercises here. Take the right option. The first dynasty during the Delhi Sultanate period was the, कौन सी डायनेस्टी थी सबसे पहली? Slave dynasty, Sayyid dynasty, none of these. It was the slave dynasty. Dash fixed the market price of essential commodities. Muhammad bin Tughlaq, Alauddin Khalji, Razia Sultan. It was Alauddin Khalji. And Iqta was a dash. Iqta क्या था? Money grant, land grant, none of these. It was a land grant. Razia Sultan was the daughter of, Razia Sultan किसकी बेटी थी? Mahmud of Ghazni, Kutubuddin Aibak, Iltutmish. Razia Sultan was the daughter of Iltutmish. So take care. Now fill in the blanks. The word Mamluk means slave. So write down slave here. The first woman ruler in the Muslim world was, she was Razia Sultan. Razia Sultan. Fine children? Dash shifted his capital from Delhi to Daulatabad. Who shifted? Muhammad bin Tughlaq. So write down Muhammad bin Tughlaq. Okay? बाबर fought with Ibrahim Lodi at, कहाँ हुई थी ये लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी की? at पानीपत. It was at पानीपत. in, कब हुई थी? in 1526. Okay? Now let's move further. Here we end up with the chapter also, and children just go through the chapter thoroughly. एक बार फिर से पढ़िएगा for all the dynasties, जो एक टेबल बनी हुई है चैप्टर में जिसमें कि सारे डायनेस्टीज दी हुई हैं, the 5 dynasties and उनके main rulers. Just go through that again and stay tuned for the new video. We'll meet again with a new chapter. Till then, stay blessed, keep learning. Bye.